Welcome to the next video, guys. We'll be talking about the Vienna Convention of Law and Treaties. In this, I've included all the previous year questions as well here. Apart from that, we'll straight away begin with what is VCLT, why do we need it as well, right? Ideally, whenever we talk about international law these days, especially in the modern era, international law, we make a convention or a treaty or a convention. In both of them, there should be something which governs it. The treaty which is governing how to introduce a treaty and a convention is known as the VCLT 1969. Right. Article 2 of VCLT, 21A of VCLT, defines what is a treaty here. Treaty is an international agreement. Treaty is an international agreement concluded between states in written form and governed by international law. Right. And Oppenheim was one of the greatest proponents of international law. He also stated that treaties are agreements or a contractual character between इंटरनेशनल एक्टर्स मतलब जो स्टेट्स हैं, बहुत सारे जो दुनिया में स्टेट्स हैं जिनको यूएन ने रिकग्नाइज़ किया गया है, या बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी हम इंटरनेशनल एक्टर्स कह सकते हैं. इट क्रिएट्स लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, राइट. देन we have the basics of treaty making. In basics, the first point we have to understand is the concept of pacta sunt servanda. Every treaty in force is binding upon the parties to it and it must be performed in good faith. Good faith is the key. जहाँ good faith आएगा वहाँ पे pacta sunt servanda का कॉन्सेप्ट आएगा. ये अफर्म हुआ है प्रियम्बल में भी VCLT के. आर्टिकल 26 में तो लिखा ही गया है. ये आर्टिकल 26 में यही चीज़ लिखी गई है. आर्टिकल 26, as I've written here, Article 26 of VCLT states that whenever there is state A and state B and there is an international treaty or a law governing it, the states should perform it in good faith. That is the whole point. Right. Oppenheim also elaborated upon this prospect that treaties are legally binding because there exists a rule in international law stating that treaties are binding. It is as simple as that. मतलब बाइंडिंग है ट्रीटीज़, ये हमें बताना है. एक्सेप्शंस है इसमें रिबक्स सेंटिबस के, ह्यूज कोजेंस नॉर्म्स के, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा भी, राइट. टर्मिनेशन एंड सस्पेंशन एंड टर्मिनेशन बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट, आगे मैं आपको सारा पढ़ाऊंगा. फिशरीज़ के जुरिडिक्शन केस को हम पढ़ चुके हैं. नॉर्वेयन फिशरीज जुरिडिक्शन केस को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. पैक्टा सेंट सर्वेंटा शुड बी अप्लाइड अनलेस स्पेसिफिक एक्सेप्शंस आर एस्टैब्लिश्ड is the norm here. साउथ चाइना सी का जो डिस्प्यूट है PCA में, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, उसमें भी ये कहा गया है कि चाइनाज रिफ्यूजल टू अबाइड बाय अनक्लॉज एंड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट पीसफुली वाज अ वायलेशन ऑफ पैक्टा सेंट सर्वेंडा. गुड फेथ में नहीं करी जाएगी तो वो वायलेशन होगा. ठीक है. अगर किसी डिस्प्यूट को हम पीसफुली रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, देयर इज़ नो पीस, राइट, देन देयर इज़ नो पैक्टा सेंट सर्वेंडा. राइट. साउथ चाइना सी का जिक्र हुआ है तो हमें भूलना नहीं है अबाउट सेनकाकू आइलैंड्स. ठीक है. सेनकाकू आइलैंड्स कहाँ है, ये आपके जोग्राफी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरनेशनल अफेयर्स में भी आता रहता है, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा. राइट. द प्रियम्बल ऑफ VCLT नोट्स दैट द प्रिंसिपल ऑफ फ्री कंसेंट एंड गुड फेथ आर यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड. ठीक है. फिशरीज़ वाला मैंने आपको एग्जाम्पल ऑलरेडी दे दिया है, उसका आप लोग ध्यान रखिएगा. ठीक है. then we have to study about the various modes of providing consent. ठीक है. आर्टिकल 11 जो है VCLT का, आर्टिकल 11 ऑफ VCLT gives the elucidation in which what means of
expressing consent are there under international laws. Means and modes, ठीक है, these are by signature, by exchange of instruments constituting a treaty, by ratification, acceptance or approval, by accession or adhesion, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं. Or by any means if so agreed. Such a consent will be effective only if it is made clear which of the provisions the consent relates. ठीक है, मैं आपको एक सरल तरीके से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, ट्रीटी जो होती है, अगर ट्रीटी को हमें अडॉप्ट करना है, ठीक है, तो या तो वो होगी एक्सेशन से अडॉप्ट, और ऑथेंटिकेशन और अडॉप्शन. ठीक है, दीज आर 3 of the 4 modes, right? And we have to remember it by AQ bar. And whenever there is a treaty, there might be certain reservations of certain states, right? These can be explicitly prohibited. There can be specific reservations as well, or these could be incompatible from the main object at the same time too, right? How the treaties are formed, now that is important, it is very important. इसके PYQs भी काफ़ी सारे हैं. जैसे मैंने आपको बताया, एक्रेडिटेशन से हो सकती है. आई एम रियली सॉरी, शायद मैं इसको गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूँ. जो सही है क्या पता, आप मेरे लिए कमेंट में लिख दीजिए. एक्रेडिटेशन से हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसके लिए जो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए एक्रेडिटेशन के लिए, इट शुड बी specifically authorized by the nation state. That is very important to understand, right? Then देखिए, ये पूरा ना एक फ्लो चार्ट है. First there will be accreditation, then negotiation, right? Then signatures, then ratification, then entry into force, देन एक्सेशन और एडहेशन. एक्सेशन एडहेशन का मतलब क्या हुआ, इधर उधर कुछ चीज़ें ऐड करना या कम करना. देन रजिस्ट्रेशन एंड पब्लिकेशन, देन एनफोर्समेंट. दिस इज द फ्लो चार्ट विच यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, फोर्स कब होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एनफोर्समेंट ऑफ अ ट्रीटी मैंने यहाँ लिखा है आप लोगों के लिए. How the enforcement of a treaty is done is very important to understand. Firstly, Article 24 of the Vienna Convention of Law and Treaties states that there can be negotiation, then there should be consent, and then the timing of the consent should be given, right? And whenever all these negotiation and the consent of all the states are done, then the treaty goes to the UN Secretariat, which is under Article 80 of the Vienna Convention of Law and Treaties, right? If the UN Secretariat passes it, then it goes on to the nation states, and it is deemed passed on the 30th day when it was passed by the UN Secretariat, right? So this is the whole format of enforcement of a treaty. I bet ये किसी भी लॉ स्कूल में पढ़ाया गया हो, बिकॉज ये चीज़ें कोई मानता है, कोई VCLT पढ़ता ही नहीं है इन डेप्थ, राइट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इफ़ यू आर स्टडीइंग इंटरनेशनल लॉ, राइट? ये देखिए, एप्लीकेशन एंड एनफोर्समेंट का मैंने आपको बताया, आर्टिकल 84, आर्टिकल 80 और UN सेक्रेटेरिएट का पूरा कॉन्सेप्ट. देन रेटिफिकेशन कैसे होती है, आर्टिकल 2A(b) ऑफ VCLT कहता है, वेयर बाय स्टेट एस्टैब्लिशेस इट्स कंसेंट टू बी बाउंड बाय अ ट्रीटी ऑन द इंटरनेशनल प्लेन, राइट? रेटिफिकेशन हो सकती है, किस तरीके से होती है मैं आपको ये बताता हूँ. पहले प्रोसेस होगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी स्टेट को रीड करने के लिए, ट्रीटीज़ को डिटेल में पढ़ने के लिए, ठीक है? स्टेट अपने आप को दूर भी रख सकता है उस ट्रीटी से. समटाइम्स द प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी रिक्वायर चेंज इन नेशनल लॉ, ठीक है? तो उसके लिए हमें ज़्यादा डेलिब्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी जब भी एक नेशनल लॉ को चेंज करने की बात हो रही होगी.
ठीक है, अगर ट्रीटी रेटिफाई हो गई है तो वो बाइंडिंग हो जाएगा, तो स्टेट को नेशनल लॉ को चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, इज देयर अ ड्यूटी टू रेटिफाई? नो, देयर इज नो ड्यूटी टू रेटिफाई। इट डिपेंड्स ऑन द फॉरेन पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, राइट। अगर साइन होगी सिर्फ ट्रीटी तो बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं बनते हैं, अगर रेटिफाई होगी तो बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस बनाए जाएंगे, राइट। Consequences of non-ratification: more often than not, the treaty does not become binding unless made so by an express provision of the treaty. जैसे कि रेफ्यूजी कन्वेंशन अभी तक बाइंडिंग नहीं है क्योंकि इंडिया ने अभी तक उसको रेटिफाई किया ही नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए मैंने बहुत सा मैप बना रखा है। सो वेन एवर देर इज़ अ ट्रीटी ऑफ UN और एनी अदर इंटरनेशनल कमिटी और इंटरनेशनल फोरम, राइट, इट गोज टू द स्टेट. दिस इज़ अ स्टेट. State can sign it and not ratify it. State can sign it and ratify it. State can deny both as well. If the state has signed and ratified, it is bound by the treaty and it has to include a national law to include the provisions of this treaty in national laws, right. Then we have reservation of the treaties, right. Article 21D elaborates upon it. It is a unilateral statement made by a state whereby it purports to exclude or modify the legal effects of certain provisions of the treaty in their application to state. ठीक है, a state is entitled to make reservation in a treaty and the relations of those states which do not oppose the said reservation are governed by the treaty. ठीक है, बेसिकली ये है कि जब भी एक ट्रीटी आएगी इंटरनेशनल फोरम में, ट्रीटी आएगी, स्टेट इज हैविंग द राइट टू रिजर्व इन रिस्पेक्ट टू द ट्रीटी. दैट इज द होल पॉइंट. ठीक है, इसमें कुछ कुछ केसेस आप पढ़ लीजिएगा. दिस इज़ वेरी इजी फ्रैंकली स्पीकिंग. ठीक है, आर्टिकल रिजर्वेशंस कौन से आर्टिकल्स में लिखा हुआ है मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा. ठीक है, रिजर्वेशंस की 3 सिचुएशन होती हैं एक्चुअली, जो आर्टिकल 19 to 23 में लिखी गई हैं. ठीक है, रिजर्वेशंस पहली ये है कि रिजर्वेशंस विच आर एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड, जो मैंने आपको पहले भी बताया. ठीक है, रिजर्वेशंस विच डू नॉट फॉल विद इन द प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी विच परमिट स्पेसिफाइड रिजर्वेशन एंड नो अदर. कुछ में आता है, कुछ में आता है. ठीक है, बस यही होता है और कुछ नहीं होता है. ठीक है, देन रिजर्वेशंस इनकम्पैटिबल with the object and purpose of the treaty as well as written, right. जो ये तो बिल्कुल ही खारिज हो जाएंगी, इसको मना ही कर देंगे लॉ मेकर्स. ठीक है, लीगल इफेक्ट्स यही हैं आर्टिकल 21 में, मैंने आपको बताई हैं. ये 3 तरीके में डिवाइड की गई हैं. ये पढ़ना ज़रूरी था इसलिए मैंने आपको बता दिया. अमेंडमेंट और मॉडिफिकेशन में क्या होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ. जो अमेंडमेंट एंड मॉडिफिकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 39, 40 एंड 41 में दिया गया है. ठीक है, ट्रीटी देखो रिजर्व और मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट में हमें पहले फ़र्क समझना पड़ेगा. ठीक है, रिजर्वेशन मतलब कुछ चीज़ों से अग्री नहीं कर रहे हैं लेकिन अमेंडमेंट अभी तक बताए नहीं हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना एक्सट्रेडिशन एंड असाइलम में, असाइलम एंड्स वेयर एक्सट्रेडिशन बिगिंस, उसी तरीके से यही है. ठीक है, रिजर्वेशन एंड्स वेयर मॉडिफिकेशन बिगिंस. ठीक है, वेरी ग्रेट लाइन. रिजर्वेशन एंड्स वेयर मॉडिफिकेशन बिगिंस. ठीक है, इसका ध्यान रखिए. आर्टिकल 39 लिखा गया है, 40 लिखा है, 41 लिखा है हमने आप लोगों के लिए. ठीक है, 39 में क्या कहा गया है कि अ ट्रीटी में बी अमेंडेड और बाय एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज
स्पेसिफिक रूल्स दिए गए हैं अमेंडमेंट कैसे होंगी, बहुत ही बेसिक है. एवरी स्टेट विच वॉज अ पार्टी टू द ट्रीटी इज एंटाइटल्ड टू बिकम अ पार्टी. देखिए जो पहले पार्टी थी वो फिर से बननी है. ठीक है. एनी स्टेट विच डज नॉट बिकम पार्टी टू द अमेंडिंग एग्रीमेंट वुड नॉट बी बाउंड बाय मॉडिफाइड प्रोविजंस. ठीक है. अगर ट्रीटी अमेंडेड है और वो अग्री नहीं कर रही है कुछ स्टेट पार्टीज मॉडिफाइड प्रोविजन से, तो वो उन पर बाउंड नहीं होंगे. एनी स्टेट विच डज नॉट साइन द ट्रीटी बिकम्स अ पार्टी टू दी अमेंडेड ट्रीटी. ये गलत लिखा हुआ है, डज नॉट बिकम अ पार्टी होगा, नॉट. ठीक है. यहाँ पे नॉट आएगा. सॉरी गाइस, यहाँ सॉरी, ये पौधा क्यों बना रहा है मुझे नहीं पता, कैक्टस क्यों आ रहा है. यस, नॉट आएगा, ये नॉट आएगा. ठीक है. आर्टिकल 41 relates to two or more parties modifying the terms of treaty inter se. This can be provided that possibility of such an amendment is provided by the treaty. The modification is not prohibited by the treaty. It does not affect the enjoyment and the rights by other parties. It does not defeat an object, the object and purpose of the treaty. ठीक है. यही जो मैंने आपको रिजर्वेशन में बताया था ना, यहाँ पे वही वापस आ गया है. ठीक है. टर्मिनेशन कैसे होगी बहुत ज़रूरी है समझना. आपको मैं समझाना चाहूँगा इस चार्ट के थ्रू जो मैंने यहाँ पे बना रखा है आप लोगों के लिए. सो वेन एवर देर इज़ टर्मिनेशन ऑफ अ ट्रीटी, इट इज़ रिटन अंडर आर्टिकल 70 ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ एंड ट्रीटीज. देन द ग्राउंड्स आर रिटन आर इन different articles. First is article 60, then 61 and then 62. So whenever we talk about termination, we have to write article 70 of VCLT, which is article 70 of the Vienna Convention of Law and Treaties, and then we have to write the grounds, and the grounds are a material breach. Whenever there is a material breach in the provisions of a treaty, that treaty terminates इन रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर स्टेट. किसी भी मटीरियल एस्पेक्ट में अगर चेंज हो रहा है तो वो टर्मिनेट हो जाएगी. ये आर्टिकल 60 में लिखा गया है. देन इफ देर इज एनी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी अगर होगी जो आर्टिकल 61 में लिखा गया है. सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? इफ देर इज एनी डिसअपीयरेंस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डिसअपीयरेंस और डिस्ट्रक्शन to the main object of the treaty, then that treaty shall be terminated in respect to the particular state which has included the aspects of disappearance or destruction, right? Then another important concept of rebus sic stantibus. In rebus sic stantibus, if there is any fundamental change in circumstances and those circumstances which were essential basis for the consent of the particular treaty, then the concept of rebus sic stantibus will come into play. ठीक है. यही है टर्मिनेशन में पूरा यही लिखा गया. आर्टिकल सारे मैंने लिख दिए आप लोगों के लिए. ठीक है. ह्यूस कोजन से कन्फ्लिक्ट कब होगा, क्या होगा, ये भी मैंने पूरा लिख दिया है. इनवैलिडिटी किस तरीके से रहेगी ये भी लिख दिया है. rebus sic stantibus मैंने आपको समझाया अभी. फंडामेंटल और मटेरियल सर्कमस्टांसेस में अगर कोई भी चेंज होगा अंडर विच द ट्रीटी वॉज कंक्लूडेड कैन बी बेसिस फॉर इट्स टर्मिनेशन बेस्ड ऑन एन इम्प्लाइड क्लॉज. एवरी ट्रीटी दैट इट स्टैंड्स ओनली सो लॉन्ग एज द मटेरियल सर्कमस्टांसेस दैट इट इज़ बेस्ड ऑन रिमेन अनचेंज्ड. ठीक है. मतलब बेसिकली ये है कि मटेरियल चेंज हो जाएगा, उससे ट्रीटी खारिज हो जाएगी. इस बात का ध्यान रखिए. ठीक है. देन देर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ pacta terti nec nocent nec prosant. It is also a very important maxim in respect to the Vienna Convention of Law and Treaties. There are 4 articles of the VCLT which elucidates in respect to it. A, it is article 34, then 35, 36 and 38. Article 34 is very basic. It provides that only parties to a contract are bound by it, but there are 3 exceptions. If the treaties are providing obligations for third parties, and it is applicable only if the third party expressly accepts said obligation in writing. Then there is article 36, treaties which grant certain rights to a third party.
right? Then multilateral treaties declaring established customary laws will bind non parties as well. अगर customary laws involved है तो non parties को involve करना पड़ेगा. That is the whole concept of it. Then multilateral treaties which create new rules of international law will bind non parties. For example UN Charter. देखिए अब जो parties नहीं भी है UN Charter की, ठीक है, अगर वो 193 कंट्रीज़ में नहीं आती हैं जो यूएन चार्टर के अंतर्गत है, ये यूएनजीए के अंतर्गत है, लेकिन ये तो नहीं होगा ना कि वो यूएन चार्टर के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगी, क्योंकि यूएन चार्टर में कुछ ऐसे जस्ट एंड गुड प्रिंसिपल्स हैं जो हर एक नेशन स्टेट को फॉलो करने चाहिए, ठीक है. सो दैट इज़ द होल प्रॉस्पेक्ट. देन वी हैव वन जजमेंट इन रिस्पेक्ट टू इट विच इज़ द बार्सिलोना ट्रैक्शन केस. Only parties to a treaty have the right to claim a breach of its provisions. This is basic contract law. बेसिक कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ठीक है. अगर पार्टी नहीं है तो किस तरीके से आप क्लेम करेंगे उस चीज़ को, राइट. सो दिस इज़ द होल प्रॉस्पेक्ट. ह्यूज कोजेंस मैंने यहाँ फिर से समझाया, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ. ह्यूज कोजेंस इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ and it is accepted as non-derogable by the international community, as I stated before in the previous classes as well. They are considered as the highest order of international legal obligations and prevail over any treaty or CIL. Three criteria are of acceptance. It should be universally accepted by the international community of the states. It should be fundamental to the international order. It should be peremptory, that is non-derogable through any treaty or custom. ठीक है. ह्यूज कोजेंस GPL है, बट ऑल GPL आर नॉट ह्यूज कोजेंस. रिमेंबर दिस. इस स्टेटमेंट के बेसिस पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, राइट. सो दैट इज द होल प्रॉस्पेक्ट. फॉर एग्जांपल अनलॉफुल यूज ऑफ फोर्स ह्यूज कोजेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है. स्लेव ट्रेड खराब चीज़ है, पायरेसी खराब चीज़ है, ये सब सारी खराब चीज़ें हैं, राइट. ये सारे केसेस हैं, मैंने आपको पहले पढ़ाए भी हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा. Thus, by codifying Hughes Cogens and Rebus Extentibus, VCLT provides a framework for dealing with change in an orderly fashion by reasserting the principle of pacta sunt servanda. It strengthens the customary rule which has always been the keystone of treaties. ये आपका हो गया easy conclusion. ये लिख के आइएगा अगर क्वेश्चन आता है तो. Thank you. If you saw the video till here, don't forget to like, share and subscribe. Have a great day.